is the Anthe logo we are launching. Happy Anthe. Happy Anthe. Akash National Talent Hunt Examination. Today we have gathered here to announce our one of the flagship entrance exam called as Anthe. So before I would come on that, first quickly I would like to take a minute to brief about our institute, and then I'll come on Anthe launch. So the heading of today's meeting is Anthe launch. So we, Akash Education Services Limited, is 38 years old institute, has started in 1988 at Delhi. Today we have more than 400 branches across India. The state where we are sitting right now, Maharashtra, we have more than 38 branches. The city, Mumbai, where we are sitting right now, we have 17 branches. Where we are sitting right now is Ghatkopar, one of the branch out of our 17 branches of Mumbai city. Anthe stand for Akash National Talent Hunt Examination. Akash National Talent Hunt Examination is the entrance exam which we conduct year on year from past 16 years. This year is the 17th edition of Anthe. This Anthe exam has started in 2010 with the objective of keeping in mind to hunt the best students of our country and to ensure the financial assistance and scholarship to all the deserving students, so that they should come with the flying colors, they should come with the top best results in NEET, in JEE. These are the entrance examinations to get into government MBBS colleges as well as to IITs and ITs respectively. As of now, in last 16 years, around 1 crore students have registered for these Anthe examinations. More than 80 lakh students have already written these Anthe examinations over the period of last 16 years. Last year, around 18 lakhs, 18 lakh students have registered for these examinations, and almost 13 to 14 lakh students have written these entrance examinations across all states of India, across all the branches of Akash. As I mentioned, we had more than 400 branches across India. Now you can assume the kind of scale what we have. I hope all of you must be knowing that entrance examination like NEET, like JEE, if you'll see JEE, total number of examination takers are around 13 to 14 lakhs in India. That kind of school what Akash is maintaining in the Anthe. So except any government conducted examination, Anthe is the only scholarship examinations which is conducted on such a large scale pan-India wise, as the statistical numbers I already shared with all of you. The exam is going to be conducted in 2 modes, offline and online. Offline dates are 11th October, 25th October and 1st of November 2026. All these 3 dates are Sundays. Timing for this offline entrance exam is 10:30 to 11:30 a.m. In all the Akash 400 plus centers on the same dates which I mentioned, on the time which I mentioned, at one go, we will be conducting this Akash National Talent Hunt examination. This is about offline mode. Apart from the offline mode, from 27th of October to till 1st of November
27th of October to till 1st of November. On every single day, this Anthe will be also conducted online as well. The online Anthe timings are morning 10 a.m. to till evening 10 p.m. At any point of time, student, as per their convenience, as per their preparation, they can appear this entrance exam. These are the dates and these are the timings. However, Aakash also conducts these Anthe examinations in the premises of schools. All the category A, B, C, all best schools, top-notch schools, all the boards, CBSE, ICSE, State Board, IGCSE Board, we conduct these Anthe examinations across all the top schools, across all the boards, across country. Now, the benefit and the outcome of the Anthe examinations. This year, recently NEET results have been announced. I hope all of you are aware of it. NEET happened, then re-NEET happened, and re-NEET results are announced. Out of top 100 AIR, AIR stands for All India rank. Out of top 100 AIR, Aakash Institute has secured 41 AIR, which was already published, and after the result announcement, all the media friends and we have already met and we have already circulated the result data. But the surprising part of this result, out of 100, Aakash has given 41 AIR. Out of those 41 AIR, 31 students are the students at one point of time have registered themselves under Anthe entrance exam, which we are talking today. They have been identified at the very early stage when they were in respective of 8th, 9th, 10th grades. They have appeared in the Anthe exam, and because they have started early and they have been nurtured through Anthe exam, they were the topper in India at the end of the 2 years or 3 years of preparation. So such mega scale impact we have of this entrance exam called as Anthe. So the idea and the objective of conducting this entrance exam is to identify the best to best talent of our country, of our city, of our state, and preparing them as per the Aakash modules for entire 2 years, 3 years, 4 years to these students, and then ultimately coming with the highest ranks in India, be it for engineering segment, where they want to get into IITs, NITs, triple IITs, IISERS, IISEs, and so on and so forth, or be it MBBS, government medical colleges. So this is whole scale we have for Anthe. This is the whole objective what we have Anthe. So one is to identify the right talent at the right time and to nurture them. And second, year on year, we offer good amount of scholarship as well as cash prize based on the Anthe score. So happily I can announce this, that this year we have kept 250 crore. Please highlight this point, 250 crore amount of scholarship and 2.5 crore cash prize based on their marks, based on their scholarship what they are going to earn through this Anthe exam. It is going to be 1 hour exam, as I already mentioned the timings and dates. It will be purely objective MCQ based exam, which has 40 questions irrespective of be it 6th, 7th, 8th or 9th, 10th, 11th. It will have 40 questions. And majority of the questions and pattern will be the MCQ objective based, because ultimately if they have to fight any entrance exam in the future is going to be the MCQ based. After the entrance exam, after the Anthe is conducted, as I mentioned the dates, results will be soon announced after the Diwali vacations, soon after Diwali. So 11th of the November is the date when we will announce the result for grade 10th student, and then followed by other grades in upcoming weeks. This Anthe exam is preliminary conducted for grade 5th to grade 12th student, irrespective whether they want to get into in any stream after 10th, maybe in future. It's not necessary that the only science aspirant students are supposed to attend this. Any student who is starting from grade 5th to till grade 10th, and of course in 11th and 12th if someone is from science stream. By appearing in this exam, student will also come to know that where they stand
in terms of their city, because the results will be announced in 3 categories: city-wise, state-wise, and country-wise. So student will also come to know that where they stand, what caliber they have, what are the scope of areas or improvement where they need to improve in future. And if they are performing pretty well, then they are entitled to get the scholarships also. This is just quick brief. I would request respected RD sir to add his valuable thoughts on this. Thank you. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि संजय जी ने बताया कि एंथे एग्जामिनेशन 2026 लॉन्च के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। एंथे एग्ज़ाम 2010 में पहली बार कंडक्ट किया गया था। ये 17th एडिशन होगा एंथे का। एंथे क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो समझना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है। एंथे एग्ज़ाम का मेन मकसद बच्चों को उनकी तैयारी कितनी है, किन सब्जेक्ट्स में वीकनेस है, किस टॉपिक में कमी है, कहाँ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ये पूरी एनालिसिस का एक माध्यम है। 5th क्लास से 12वीं क्लास तक के सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम कुछ नीट और जेई के लिए नहीं है, सिर्फ 5th से 10th तक के बच्चे किसी भी स्ट्रीम के लिए हो सकते हैं। बट सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनको साइंस तो पढ़नी ही है। साइंस एक बेस है किसी बच्चे के लिए, चाहे हम लोगों के लिए, कि हमें क्या खाना है, कौन सी हवा लेनी है, क्या ध्यान देना है, पोल्यूशन कैसे बढ़ता है, सब चीज़ें, सब बेसिक जानकारियाँ हैं जो हम 6ठी से 10वीं तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एंथे का एग्ज़ाम उन बच्चों को देना जरूरी है, देना चाहिए। ये नहीं कि आप नीट करना चाहें, जेई करना चाहें तभी दें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हमारा देश में जो होता है, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आईपीएस का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप बात करें, सभी मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में होता है। सब में जीके आती है, सब में साइंस आती है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ साइंस ना आती हो। अगर बच्चा 6ठी से 10वीं तक साइंस अच्छी तरह से समझ के पढ़ता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो एंथे एग्ज़ाम देना इसलिए ज़रूरी है। एंथे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और सारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे सर ने कहा थोड़ी देर पहले। नेगेटिव मार्किंग होती है, बट फिलहाल हमारे इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चे दें, क्योंकि उनकी तैयारी नेगेटिव मार्किंग के नहीं है तो डिसएडवांटेज मिलेगा उनको, इसलिए हम चाहते हैं सब बच्चे इस एग्ज़ाम को दें। एंथे एग्ज़ाम 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। टाइम 10:30 बजे से 11:30 के बीच में, 1 घंटे का एग्ज़ाम है। बट कोई बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम बच्चा कब देगा? 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक का टाइमिंग है, जिसमें बच्चा कभी भी एग्ज़ाम दे सकता है। अब लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जब ऑफलाइन एग्ज़ाम आप ले रहे हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? जो बच्चे आसपास रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते, वो आराम से आकर के ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, हमारे जो एक सेंटर्स हैं, क्योंकि पूरे हर गांव हर शहर में तो हमारा सेंटर है नहीं, 400 सेंटर होने के बाद भी हम हर कस्बे को तो कवर नहीं कर सकते। तो बच्चे जो बहुत दूर रहते हैं, गाँव में, प्रदेश में, देश में, तो वो बच्चे भी उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। कई बार होता है कि पेरेंट्स नहीं ले आ सकते बच्चों को दूर तक टेस्ट दिलाने के लिए, तो अल्टीमेटली बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम वहाँ दे सकता है। फिर जो विजन है पीएम साहब का, जो ऑनलाइन मोड में हम कोचिंग चलाएं, सभी बच्चों को निःशुल्क सहायता दें, तो बहुत अच्छा है और हम उसको पहले से ही सपोर्ट करते आए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम लोग डिजिटल मोड से ऑलरेडी क्लासेस चला रहे हैं, हाइब्रिड मोड में पहले क्लासेस चला रहे हैं, और ऑफलाइन मोड तो है ही है। फिलहाल ये पेरेंट्स को और बच्चों को डिसाइड करना है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है या हाइब्रिड पढ़ना है, या दोनों का मिक्सचर पढ़ना है, जो हाइब्रिड है हमारा। बट हम सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का। ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी ने उसको उठाया है, बेड़ा उठाया और लोगों को हेल्प करने की कोशिश की है। उसी माध्यम से हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं इतने सालों से, और उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं।
स्कॉलरशिप बेसिकली हमारी तरफ से दिया हुआ खर्चा है जो बच्चों को फायदेमंद होता है, जिससे कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करके रिजल्ट ला सकता है। तो गरीब बच्चा भी अगर मेधावी है, मेहनती है, कुछ करना चाहता है और कर सकता है, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से 100% स्कॉलरशिप तक मिलती है बच्चों को जो एग्ज़ाम देते हैं। तो 250 CR जो बताया 250 करोड़ रुपए, वो उसी में एडजस्ट होता है स्कॉलरशिप में, जिसमें बच्चे को लगभग फ्री पढ़ाई हो जाती है। कोरोना से पहले सब ऑफलाइन था, कोरोना के बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन के फायदे नुकसान अभी डिस्कशन का विषय नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। बट एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होगा, जैसे जेईई का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, तो वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगा। बट हम उस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन मोड से अगर हम बच्चों को, दूर जो बैठे बच्चे हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट भी किया है और उनको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो पढ़ाई का मेन मकसद होता है, टेस्ट का मेन मकसद होता है, हम टेस्ट की बात करें, एंथी टेस्ट की। बच्चे ने एंथी का एग्ज़ाम दिया, बच्चा कंपटीशन के लिए कितना तैयार है वो हम चेक कर लेते हैं। बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में वीक है, वो हम एनालाइज कर देते हैं। बच्चा जो सवाल करता है वो कितने % सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, कितने छोड़ता है, वो भी एनालाइज कर देते हैं। तो अगर हम सब चीज़ों को एनालाइज करके बच्चे को बता देंगे कि बेटा आपकी इन चीज़ों में कमी है, इनको इम्प्रूव करने से आपका फ्यूचर रिजल्ट बेटर आ जाएगा, तो जो बच्चा छोटी क्लासेस से 6 से या 7 से पढ़ना शुरू करता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो हर साल इम्प्रूव करते करते एक समय ऐसा जरूर आएगा, जो भी एग्ज़ाम में कोशिश करेगा सफल जरूर होगा। तो जो सफलता चाहता है उसको इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। देने से अपने आप को एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है। क्लास ज्वाइन करता है नहीं करता वो बात की बातें हैं, बट पहले अपने आप को चेक करें नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, स्टेट लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, नीट और जेईई की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो ऑल इंडिया रैंक अलग आती है, स्टेट रैंक अलग आती है। अधिकतर स्टेट्स में क्या है, 85% कोटा स्टेट के बच्चों का होता है। जैसे महाराष्ट्र में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं और जो महाराष्ट्र में 85% मेरिट लिस्ट में आते हैं, उन सब बच्चों को महाराष्ट्र में सीट मिल जाएगी। ऑल इंडिया का सिर्फ 15% कोटा होता है महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से आता है तो 15% कोटा के अंदर ही आएगा, वो हमारे महाराष्ट्र की सीट नहीं ले सकता। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जन्म में पैदा हुए बच्चे और जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका डोमिसाइल यहाँ का है, उसके 85% कोटा। इसलिए हम भी एंथे में स्टेट रैंक, सिटी रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक देने की बात कर रहे हैं, जिससे बच्चा अपने स्टेट में, अपने सिटी में देख सके वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं ब्रीफ यही बताना चाह रहा हूँ, और चीज़ें बहुत सारी आपके सवाल होंगे जवाब देंगे। मैं चाहूँगा कि कुलदीप जी मराठी भाषा में मी जरा मराठीत वाईट देईन. सो आपण जसे आज सगळे गोळा झालो आहोत अँथे लॉन्चसाठी 2026 हा अँथेचा 17वा एडिशन आहे. गेल्या 16 वर्षापासून आकाश हे अँथे कंडक्ट करतोय आणि जसं आकडे आपण बघितले तर आत्तापर्यंत ज्या 1 करोड मुलांनी जे रजिस्टर केलं, ज्यापैकी 80 लाख मुलांनी ही परीक्षा घेतलेली आहे. आणि जर म्हटलं तर यावर्षी आपण जे आहोत वर्षानुवर्ष या परीक्षेमध्ये मुलं सहभागी होत चालले, वाढत चालले. आणि या परीक्षेच्या माध्यमातून जे मुद्दे जे आहे, उद्देश आहे, हे टॅलेंटेड जे मुलं आहेत अक्रॉस इंडिया भारतात त्यांचं टॅलेंट आयडेंटिफाय करणं, 5वी ते 10वी आणि 11वी आणि 12वी ज्यांना त्यांना जे आहे त्यांना आर्थिक मदत आणि त्यांचे जे आहे अकॅडमिक प्रोग्रेस हे आयडेंटिफाय करणं. कारण की खूपशे अशी मुलं आहेत गावाखेड्यात, शहरात, प्रदेशात ज्यांना हे माध्यम भेटत नाही, पण ह्या माध्यमातून ह्या परीक्षेद्वारे त्यांना जे आहे हा प्लॅटफॉर्म, कारण की आपल्या सगळ्याच परीक्षा ज्या भारतात होत आहे कॉम्प्युटर एक्झाम, त्यांच्या जर आपण म्हटलं तर त्याच्यात हे खूप महत्त्वाचं आहे की त्यांना मुलांना त्यांना जे आहे कसं परीक्षा देणं, कसं अभ्यास करणं, कशा त्यांचे नेगेटिव्ह मार्किंग्स आहेत, काय आहे हे सगळं समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. तर या माध्यमातून आपण मुलांना हा तो प्लॅटफॉर्म देतोय, एक बेस देतोय, ज्याच्यातून त्यांना ह्या परीक्षेत कसं प्रगती करावी, कुठल्या क्वेश्चन सोडाव्या, कुठला प्रश्न सोडावा, कुठला क्वेश्चन करावा, कारण की नेगेटिव्ह मार्किंग्स आहे. तर या सगळ्या माध्यमातून त्यांना कळतं. परत म्हटलं तर शालेय परीक्षेत आपण म्हटलं शालेय परीक्षेत नेगेटिव्ह मार्किंग नसते, पण इकडे आपण नेगेटिव्ह मार्किंग कसं असं काय, कुठला प्रश्न सोडावा हे त्यांना हे आपण आयडेंटिफाय करायला म्हणजे शिकवतो.
तर म्हटलं तर आकाशचे आत्तापर्यंत जे आहे 400+ ब्रांचेस आहेत, ज्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत 4 लाख मुलं शिकत आहेत. 8वी 9वी 10वी शालेय परीक्षेत, ओलंपियाड्स, नीट आणि JEE. जर एक उदाहरण जर घेतलं तर यावर्षी 2026 नीटमध्ये जे टॉप 100 मुलं जे क्वालिफाय झाले, 41 मुलं क्वालिफाय झाले आकाशमध्ये. ज्यात 31 मुलांनी या माध्यमातून, या आंतेच्या माध्यमातून एंट्री घेतली आकाशमध्ये, शिकले आणि दे स्कोर्ड टॉप 100. तसंही JEEमध्ये जे आहे टॉप 11 मुलं, JEE ॲडव्हान्स जे 11 मुलं होते त्यापैकी 7 मुलांनी अशी की जे याच्यातून माध्यमातून याचा फायदा घेतला. तसं जर आपण म्हटलं ओलंपियाड्स, 8वी 9वी 10वीच्या मुलांना ओलंपियाड्स बसावं लागतं. त्यामध्ये NSC आहे, NSC JEE आहे, होमी बाबाची परीक्षा आहे. या सगळ्या माध्यमात परीक्षेचे जे आहे अभ्यासक्रम एकच आहे, पण परीक्षेचे लेवल वेगवेगळे आहेत. ही अँथे त्यांना ह्याच्यातून तयार करतो आणि त्यांना वर्गात प्रिपरेशन कशी करावी, काय करावं, शाळेत कसं चांगलं करावं आणि कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये कसं चांगलं करावं. तर या माध्यमातून आपण हे जे आहे तुमच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्रात, पूर्ण मुंबईत आणि भारतात प्रत्येक मुलांनी ही परीक्षा घेतली पाहिजे. सर्वात मोठी परीक्षा आहे, सर्वात जुनी परीक्षा आहे आणि याच्यात त्या मुलांना स्वतःचं ॲनालिसिस करता येणार. मी कुठे आहे, मला कुठे प्रगती करायची, ही ॲनालिसिस करीत आहे मुलांना परीक्षा दिली पाहिजे. कारण की जर जेव्हा निकाल येणार ह्या परीक्षेचा तर त्या मुलांना त्यांचे किती वेळेत त्याने किती प्रश्न सोडवले, किती चुकवले, किती सोडले, किती प्रश्न जे आहेत सोपे होते, किती मध्यम होते, किती जे आहेत डिफिकल्ट होते, ह्याची आयडिया होते. कारण की आपण जेव्हा रेग्युलर थिअरी वाचतो त्यात आपल्याला इझी, डिफिकल्ट, मिडियम समजत नाही, पण ह्या माध्यमातून या परीक्षेजवळ आपल्याला ह्या सगळ्या डिफिकल्टी लेवल्स तयार होऊन समजून येतात. तर आता म्हटलं तर ह्या परीक्षेला जे आहे यावर्षी आकाशने 2.5 करोड रुपये जे आहे 2.5 CR हे जे आहे रोख रक्कम ठेवली आहे, राईट. आणि जे आहे स्कॉलरशिप पण ठेवली आहे आणि 100% स्कॉलरशिप याच्यात मुलांना भेटेल. फक्त मुलांना जे आहे रजिस्टर करायचं आहे आणि जे आहे परीक्षेचे 2 माध्यम आहेत, एक ऑफलाईन माध्यम आहे आणि एक ऑनलाईन माध्यम आहे. ऑफलाईन माध्यम आहे 11, 25 ऑक्टोबर आणि 1 नोव्हेंबर सकाळी 10 ते 11. आणि जर ऑनलाईन म्हटलं तर जे आहे सकाळी 10 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत स्वतःच्या घरी बसून मोबाईल माध्यमातून, लॅपटॉपच्या माध्यमातून किंवा टॅबच्या माध्यमातून मुलं देऊ शकतात. स्वतःच्या जे आहे कम्फर्टेबल झोनप्रमाणे बसून देऊ शकतात आणि त्याचा निकालप्रमाणे त्यांना मुलांना आपण त्यांचे स्कॉलरशिप्स आणि त्यांच्या जे परीक्षेचा उत्तीर्ण रिझल्ट आला तो त्यांना करू. तर हे तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून इच्छितो की हे जेवढ्या मुलांना हे पोचू शकेल, जेवढ्या मुलांना हे घेता येईल तेव्हा त्या मुलांना याचा फायदा घ्यावा. कुठलाही विषय त्याचा पुढे त्याला घ्यायचा आहे, समजा 8वी 9वी 10वीचा मुला त्याला काही कॉमर्स घ्यायचं असेल, काही सायन्स घ्यायचं असेल, जे काही आर्ट्स घ्यायचं असेल, पण ही परीक्षा देणं खूप गरजेचं आहे. कारण की आपल्याला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स काय आहे, कारण की उद्या कुठल्याही मुलं MPSC देतो, UPSC देतो, बाकी परीक्षा देतात, कुठल्याही देतात, तर ह्याच्यात कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे ह्याच्यात असतो. तर ह्याचं जे आहे मी कन्क्लूड करतो. ठीक आहे, थँक्यू. आणि त्यानंतर जे आहे 200 रुपये फीज आहे, त्याची एंट्री फीज आहे. आणि जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात त्यांना आपण अप्रिशिएट करतो आणि जे विद्यार्थी सहभागी होतात परंतु उत्तीर्ण होत नाही तर त्यांना सर्टिफिकेट किंवा काही. तर या परीक्षेचा आपण जो 200 रुपये म्हटलं याच्यात आपण मुलांना जसं रजिस्टर केलं त्यांना आपण फ्लॅश कार्ड्स देतो. कुठल्या 8वीचा जो 9वी ज्याप्रमाणे त्यांनी रजिस्टर केलं 8वीचं, तर त्यांना आपण त्यांच्या सायन्स मॅथ्सचा फ्लॅश कार्ड देतो, ज्याकडून त्याला ह्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची पण तयारी करता येते आणि शाळेची पण तयारी करता येते. हे त्याला निःशुल्क भेटतं. परत त्याला पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भेटतं. त्यानं या परीक्षेत पार्टिसिपेट केलं त्याचं सर्टिफिकेट भेटतं. त्याला पूर्ण त्याचं ॲनालिसिस, प्रत्येक पेपरचा प्रश्नाचं त्याचं ॲनालिसिस त्याला पूर्ण सर्टिफिकेट तयार होऊन भेटतं आणि त्याची पुढे काय त्याची पोटेन्शियल काय आहे, म्हणजे हाऊ इज डुईंग वेल इन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, त्याची काय पोटेन्शियल, पुढे तो काय करू शकतो, त्याने कुठल्या त्याच्या वीक एरिया आहेत, कुठे कमी आहेत, ते त्याला त्या सर्टिफिकेटमधून आणि पूर्ण जेव्हा 10 पेजचं त्याचं पूर्ण ॲनालिसिस आहे हे त्याला आपण देतो. सवाल था कि फीस क्या लगेगी, पहले वहाँ से शुरू करते हैं. टोटल फीस 200 रुपये टेस्ट की है. 31 अगस्त तक सिर्फ 100 रुपये लिया जाएगा. बट जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको एक सैम्पल पेपर मिलेगा कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और पेपर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 4 पेपर और ले सकते हैं, सिर्फ 50 रुपये की कॉस्ट है 4 पेपर, अगर आप लेना चाहें तो कंपल्सरी कुछ नहीं है.
हमारा आकाश के ऐप के थ्रू हम आपको तैयारी भी कराएंगे एनथे की, कि ये पेपर है, ये वीडियो देखो, क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, वो सब हम देंगे, वो आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो फ्लैश कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड होता है हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बना होता है। तो 7वीं से लेकर 10वीं क्लास के सब बच्चों को फ्लैश कार्ड दिया जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उस फीस में इंक्लूड है वो, तो इनडायरेक्टली जो आपने पैसा लगाया उसकी तैयारी भी करा दी हमने आपको, जिससे आप अच्छा कर पाए। अब आपका अगला सवाल होता है कि हम स्कॉलरशिप जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या? ये टेस्ट क्वालिफाई डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट इसका है कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्वालिफाइड सारे ही हैं, वनली स्कॉलरशिप के लिए आप टेस्ट ले रहे हो, एंट्रेंस स्कॉलरशिप एग्जाम बेसिकली है। तो आप मान लीजिए आपके बच्चे का 90% स्कोर आ गया और हमारी स्कॉलरशिप उस पर 90% मिलती है, तो हम 90% आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। दैट मीन्स वो आपका, अगर हम मान लीजिए एक एक्स अमाउंट फीस है, 100 रुपये की फीस है, उदाहरण ले लेते हैं कि हमारी कोर्स फीस 100 रुपये है, तो 90 रुपये आपके कट के 10 रुपये आपको देना पड़ेगा, तो 10 रुपये में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, तो वो स्कॉलरशिप होगी। इनडायरेक्टली वो हमने पैसा आपसे नहीं लिया, वो स्कॉलरशिप है। तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा क्या स्कोर लाया, ये पहला स्टेप। सेकेंड, अगर वो बच्चा बहुत ख़राब परफॉर्म कर पाया, नहीं कर पाया, फिर से तैयारी करें, और उसके जो हमारे फ्यूचर में टेस्ट होंगे 4-5 महीने बाद, वो टेस्ट दे करके फिर से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही एक माध्यम है, बट ये एक मुख्य माध्यम है, क्योंकि इसमें नेशनल लेवल पे सारे बच्चे बैठने वाले हैं और उसमें आप कंपैरिजन देख सकते हैं कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इसमें कोई हार या जीत नहीं है, जीत ही जीत है। सिर्फ 100 रुपये में तैयारी भी हो गई, फ्लैश कार्ड भी मिल गए, आपने आपको चेक भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, और फिर उस कमी को पे काम करके हम फिर से वापस सिस्टम में आ सकते हैं। 31 बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने एंथे दिया था, और अभी वीडियो भी आपने देखा होगा, हर्षिता है, उसने कहा, हंसिका ने कहा कि मैंने एग्जाम, वो सिरसा की रखी है, सिरसा में रहती है, गांव में रहती थी, तो वहाँ के स्कूल में उसने एग्ज़ाम दिया, वो सिलेक्ट हुई 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास फिर 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ी, उस समय मेडिकल कॉलेज क्वालिफाई कर दिया, उसके 66 रैंक है ऑल इंडिया, और वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगी, और हो सकता है एम्स मिल जाए, अगर कोई 4-5 सीटें कोई अपने एडजस्ट हो जाए तो एम्स मिल सकता है। ना सरकार सब बच्चों को एडमिशन दे सकती है, नीट में इतनी सीट नहीं मिल सकती, ना जेई में दे सकती है, वहाँ पे तो मेरिट लिस्ट है ना, बोर्ड एग्जाम है, वहाँ है सब बच्चे पास हुए फेल हुए, पर कंपटीशन में तो जो बच्चा मेरिट के अंदर आ गया, जितनी सीटें हैं उसको सीट मिलनी है और किसी को मिलनी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती उसमें कुछ। तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे उन बच्चों का जो बच्चे कुछ पाना चाहते हैं और उनमें कुछ कमी है, तो उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके उसको सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ स्कॉलरशिप एनथे के थ्रू नहीं दे रहे हम लोग, इसके अलावा आर्मी वालों को भी दे रहे हैं, CRPF को भी दे रहे हैं, और आसाम राइफल्स को भी दे रहे हैं। तो सब लोगों को हम, इन लोगों को भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनके बच्चों के, क्योंकि डिफेंस में बच्चे हैं तो उनके डिफेंस बच्चों पे अलग से स्कॉलरशिप है। तो फौजी भाइयों को भी दे रहे हैं, पुलिस वालों को भी दे रहे हैं, टीचर्स को भी दे रहे हैं, जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देनी वहाँ भी मिलती है। तो कई जगह हम लोग स्कॉलरशिप बांटते हैं जिससे कि बच्चे पढ़ पाएँ, अपने सपने को पूरा कर पाएँ। तो जेई की रेफरेंस से बात करें, जेई में हम महाराष्ट्र सेट का एग्जाम अलग होता है, कर्नाटका सेट अलग होता है, एम सेट अलग होता है, हर स्टेट का अपना अपना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, प्लस हमारे जेई का मेन से एडवांस लेवल भी एग्जाम अलग है जी। नीट में पूरे इंडिया में चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सबका एक ही एग्जाम है जिसका नाम नीट है। तो सारे बच्चे को उस एग्जाम को देना ही पड़ेगा, इसलिए आपको नंबर ज़्यादा दिखता है कि नीट में इतने सारे बच्चे रुचि रखते हैं। हम जेई में देखें तो शायद इससे बड़ा नंबर होगा, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस को जोड़ लीजिए, आप ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस को जोड़ लीजिए, SRM यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, सब अपना अपना अलग एग्जाम लेते हैं। सबको जोड़ा जाए तो बच्चों को एक ही एग्जाम देना पड़ेगा अगर जेई का, तो नंबर शायद इससे मतलब नीट से बहुत बड़ा नंबर है।